Okay, students, let's move to question number 24. If a cone, a hemisphere, and a cylinder have equal base radius and the same height, then their ratio of volume is. Means volume का ratio find out करना है, ठीक है? Cone, then hemisphere और cylinder का. Volume of cone is 1/3 pi r square h. हेमिस्फेयर का है 2/3 पाई आर क्यूब एंड देन सिलेंडर का है पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई 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 कैंसिल, आर स्क्वायर यहाँ पे है, आर स्क्वायर आर क्यूब है, सो दिस विल बी आर एंड देन ये 1/3 h 2/3 r and then h. Okay, now see, height of hemisphere will be radius of the hemisphere, है ना? And three cases में क्या है, height is same, तो we can cancel it out. मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/3, इधर 2/3 and then 1. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा 1:2:3. तो आपका वॉल्यूम का रेशियो हो गया 1:2:3. 1:2:3 है आपका ऑप्शन नंबर डी में. ओके, नेक्स्ट question number 25. If A, B are measures of the sides of a cuboid, then total surface area of the cuboid is. Means dimensions given है, यहाँ पे L is equal to A, B भी है आपका, breadth is also A and height is B. Length is A, breadth is A and height is B. Now total surface area of a cuboid is, इसका फॉर्मूला है 2 into LB plus BH plus HL, right? This is the formula. Okay, now L का वैल्यू है A into A, B is also A, H का वैल्यू है B, ठीक है? Okay, this is A into A is A square plus A into B is AB and then B into A is AB. 2A square plus twice of AB. Okay, this is the correct answer. तो ऑप्शन नंबर होगा आपका B, 2A square plus 2AB. Okay. Question number 26. The mean of 1, 2, 3, 4 up to n is given by. अभी यहाँ पे आपको mean find out करना है. 1, 2, 3, 4, n. ठीक है. तो हमें मालूम है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? n है. ओके, अभी इसका जो सम है 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n, सम हमें मिला था एपी में, है ना? दिस इज इक्वल टू इतना n + 1/2 डिवाइडेड बाय n. This will be 2 into 1/n, n plus 1/2, n plus 1/2. ये याद रखना, अगर आपको मीन निकालने के लिए बोला गया है नेचुरल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, तो इसका आंसर हमेशा n plus 1/2 ही होगा. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 27. One of the methods of determining mode is, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, which one is the correct option? तो स्टेटिस्टिक्स में हमें मिला था रिलेशन बिटवीन मोड, मीडियन एंड मीन का. ये था 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन. ये हमें मिला था, राइट? अभी आपको मोड निकालने के लिए कौन सा मतलब फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे? ठीक है, 3 मीडियन, मीन को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये हो जाएगा ऐसा, यानी कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. यहाँ पे देखो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 28. The probability of not having same birthday for 2 persons, यहाँ पे options given है, which one is the correct one? Okay.
Okay, now see the probability of having same birthday is कितना होता है 1/365. Having same birthday is 1/365. आपको निकालना है not having same birthday. ठीक है, तो हमें मिला था ना P of E plus P of not E is equal to 1, right? तो यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है. तो probability of having not having same birthday is equal to 1 minus having same birthday, यानी कि ये होगा 365. this will be 365 minus 1, so 364/365. so answer is 364/365, option number D. Okay, now question number 29. If A and B are complementary angles, then sin A equal to sin B, cos A equal to sin B, tan A equal to tan B, sec A equal to cosec B. तो इनमें से कौन सा सही होगा हमें चेक करना है. ठीक है, तो A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल है ना. A इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री माइनस B. ओके, पहले हम चेक करेंगे both side multiply करके with sin. So this will be sin A is equal to sin 90 degree minus B. तो sin 90 degree minus B is equal to cos B, है ना. तो ऑप्शन में sin A equal to sin B given है, so this is wrong. Next multiply करेंगे with cos. Cos A is equal to cos 90 degree minus B. This will be sin B. Cos 90 degree minus B is equal to sin B. Option B है, so this is correct. अभी multiply करते हैं 10 से, so tan A is equal to tan 90 degree minus B, and this is equal to cot B. tan A is equal to cot B, but यहाँ पे given है tan A equal to tan B, so this is also wrong. अभी multiply करेंगे with sec, तो sec A is equal to sec 90 degree minus B. Sec 90 degree minus B is equal to cosec B. Fine. So sec A is equal to cosec B. This is correct. मतलब 2 and 4. So option number D is the correct answer. Okay, next question number 30. If R, H and L are radius, height and slant height of a cone respectively, then curved surface area of the cone is. मतलब कोन का रेडियस, हाइट एंड स्लैंट हाइट इज गिवन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कौन सा होगा. तो हमें मालूम है ना ये पाई आर एल होगा, ये भी सही है, पाई आर एल सेम गिवन है 2 टाइम्स, एंड देन पाई आर एल का वैल्यू है √h² प्लस r², ये. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो यहाँ पे ऑप्शन ए में 3 and 4 है, मतलब ये दो, ये भी सही है, एंड ऑप्शन बी में 1 and 4, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 31. If x1, x2, x3 dot dot xn are observations having respective frequencies f1, f2, f3 up to fn and x bar is the mean, then which of the following is true? So mean का फॉर्मूला तो हमें मालूम है ना, x bar is equal to summation of f I xi by summation of fi. तो ये सही है, ये सही है, बट दिस इज नॉट करेक्ट. यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो x बार इंटू समेशन ऑफ fi, और इधर है समेशन ऑफ fi xi, मीन्स ये भी सही है, बट दिस इज नॉट ट्रू. मतलब ऑप्शन 1 and 3, तो बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही आंसर होगा. अगला क्वेश्चन. 2 dice, one blue and one gray, are thrown at the same time. An event is defined as the sum of the two numbers appearing on the top of the dice whose probability is 1/36, then sum of the two numbers. ठीक है,
2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे थ्रो किया गया है। अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/36। अभी प्रोबेबिलिटी किसका है? एन इवेंट, ठीक है। एन इवेंट मतलब जिसका सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप, सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप। तो यहाँ पे अभी देखो 1/36 है ना, दिस इज आवर टोटल आउटकम 36 और यहाँ पे 1 है, तो ये एक ही बार आएगा, जैसे कि 1,1, ठीक है, और 6,6, ये दोनों दो ही होगा सैंपल स्पेस, मतलब ये एक और इसमें, ये दोनों केसेस में यहाँ पे 1 आ सकता है, ठीक है। अभी सम ऑफ 2 नंबर्स कितना होगा? यहाँ पे 1 + 1 इज 2 होगा, ठीक है, और 6 + 6 इज 12 होगा। 12 तो ऑप्शन में दिया नहीं है, ओनली 2 इज गिवन, सो आवर आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, Hanif tosses a 1 rupee coin 3 times and notes its outcomes as, यहाँ पे outcomes given हैं, ठीक है। Then what is the probability that Hanif gets 2 heads where H and T represents head and tail? तो यहाँ पे outcomes given है, total outcome कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। So probability, हमें probability निकालना है। यहाँ पे टोटल आउटकम जो है, टोटल आउटकम कितना है? 8 है, सो टोटल आउटकम विल बी 8, ठीक है ना। अभी यहाँ पे किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है जहाँ पे हनीफ गेट्स 2 हेड्स, 2 हेड्स का प्रोबेबिलिटी। 2 हेड कहाँ कहाँ पे आ रहा है? ये एक है HTH, देन THH, यहाँ पर भी 2 टाइम्स है, और कहाँ पे है? यहाँ पर है HHT, बाकी कहीं पे भी 2 हेड्स सेम टाइम में नहीं है, ओके। तो 3 होगा, तो फेवरेबल आउटकम विल बी 3, माने 3/8। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। अभी यहाँ पे आपको बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में इसका जो सीक्वेंस है, स्टेप किसके बाद कौन सा आएगा, वो हमें निकालना है। स्टेप्स भी दिया हुआ है यहाँ पे देखो। तो इक्वेशन जो है वो है x minus y equal to 3 and next है twice x plus 3y is equal to 36, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना है, ये वाला आएगा नंबर 1 में, मतलब यहां से x इज इक्वल टू क्या होगा? 3 + y, है ना। फिर अभी x का जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करना है सेकेंड इक्वेशन में, मतलब यहाँ पे है ना 2x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 + y + 3y इज इक्वल टू 36 हो गया। तो पहले ये होगा नंबर 1, नंबर 2 में आएगा नंबर 4, ये नंबर 4, ये होगा नंबर 2, ठीक है। फिर आपका देखो ऑप्शंस में क्या है, 2 4, 2 4 कहाँ पे है? यहाँ पे, बाकी देखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार चेक कर लेना। उसके बाद 3, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू आप निकालोगे ना, y का वैल्यू, फिर y का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ, फिर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, the sum of the zeros of the following quadratic polynomials arranging in ascending order। यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल गिवन है, अभी सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अभी सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है -b/a, ठीक है। फॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल यहाँ पे -b/a इसका वैल्यू आ जाएगा -2, इधर a का वैल्यू है -1, दिस इज 2, ठीक है। सेकेंड पॉलिनोमियल में -b मतलब -6/2, दिस इज -3, फिर यहाँ पे -6 है b का वैल्यू, सो माइनस ऑफ -6, a इज 1, सो दिस इज 6, और यहाँ पे है -8 गिवन है b का वैल्यू, सो माइनस ऑफ -8 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 4। अभी इसे अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर 2 b फर्स्ट आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा एंड देन 3 आएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, अभी जो भी क्वेश्चन आपको देगा, मतलब 36 से लेके 39 तक यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको केयरफुली उसको पढ़ना है, फिर
ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो आपको चूज करना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है P, यहाँ पे गिवन है HCF ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। यस, दिस इज ट्रू, है ना, LCM इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ LCM। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय टू, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या है, बैक टू बैक नंबर, जैसे कि 2 into 3 है ना, 2 into 3 is 6, so this is divisible by 2। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, से फॉर एग्जांपल 5 और 6, 5 6 का कितना है 30, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर का जो भी प्रोडक्ट होगा दैट विल बी डिविजिबल बाय 2। सो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है P और Q बोथ आर ट्रू, so option A is the correct one, means both P and Q are true। okay, आगे बढ़ते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे P स्टेटमेंट दिया हुआ है, a point P is at a distance of 25 centimeter from the center O of circle with radius 7 centimeter। If tangent PQ and PR are drawn, then area of the quadrilateral PQOR is 168 centimeter square। okay, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है, दिस इज अ सर्कल, P is a point, डिस्टेंस बिटवीन P एंड O इज 25 सेंटीमीटर और रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ओके, अभी आपको एरिया निकालना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है ना क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है। तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, पहले तो देखो POI ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये तो 90 डिग्री है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। सो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल POR by पाइथागोरस थ्योरम। PO स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। अभी PR तो नहीं गिवन है, PO का वैल्यू दिया हुआ है, तो PR निकालने के लिए PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू PO स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर, 25 स्क्वायर minus 7 square, 25 square is 625 minus 49, यहाँ पे आ जाएगा 675, यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू 576, PR इज इक्वल टू रूट ओवर 576 और 576 है 24 का स्क्वायर, तो PR का वैल्यू होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अभी PR निकाल लिया है, तो नाउ वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ POR। तो अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल POR इज इक्वल टू कितना होगा, हाफ, यहाँ पे करते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, तो इधर बेस हो जाएगा PR इंटू OR, है ना। PR का वैल्यू हमने निकाल लिया है 24, OR इज 7, 12 7 जा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो क्वाड्रिलेटरल है ना PQOR, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ट्राइंगल POR, बिकॉज यहाँ पे जो दो ट्राइंगल गिवन है दोनों का ही एरिया सेम है। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQOR दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 84, यानी कि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट। क्यू में दिया है द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर नॉट इक्वल, बट ये फॉल्स है ना, लेंथ्स ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, P is true but Q is false, option B is the correct answer। Okay, next question number 38, P
If the scale factor is 3/5 then the new triangle constructed is greater than the given triangle. तो आपको स्केल फैक्टर गिवन है 3/5. ओके, तो यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, अगर आपको स्केल फैक्टर जो भी गिवन है यहाँ पे अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हुआ तो इन दैट केस जो न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन ट्राइंगल. ठीक है, और अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है इन दैट केस जो भी न्यू ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द गिवन ट्राइंगल. ठीक है, याद रहेगा. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट जो भी है ये फॉल्स है. नेक्स्ट जो दिया हुआ है फॉर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक रेशियो गिवन है. दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट. तो अभी चेक करते हैं कि ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा. ठीक है, जो भी रेशियो गिवन है दैट इज √9 माइनस √4 इज टू √9 प्लस √4. √9 is equal to 3 and √4 is equal to 2. ठीक है, और यहाँ पे √9 is 3 and then same 2, यानी कि 3 minus 1 2 is 1, 1 is to 5. So we can divide any line segment into 1:5 ratio. ठीक है, so ये वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, मतलब ये ऑप्शन डी इज करेक्ट. बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स. Okay, next question 39. P. If the ratio of radii and height of two cylinders are 2:1 and 1:2 respectively, then ratio of their volume is 1:2. वॉल्यूम का रेशियो गिवन है और यहाँ पे कहा है कि रेशियो ऑफ रेडियाई सिलेंडर 1 और 2 का मतलब R1/R2 इज इक्वल टू 2:1 माने 2/1, और हाइट्स का जो रेशियो है H1/H2 इज इक्वल टू 1:2 मतलब 1/2. ठीक है, अभी वॉल्यूम का जो रेशियो है वो चेक करते हैं V1/V2. ठीक है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h है ना. तो πr1²h1 πr2²h2, पाई कैंसिल, R1/R2 है 2/1, स्क्वायर करने के बाद हो जाएगा 4/1 और H1/H2 है 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2/1 यानी 2:1 होगा. बट यहाँ पे गिवन है 1:2, मतलब ये जो P स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स. ओके ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे Q का जो स्टेटमेंट है वो सही है कि नहीं है. तो चलिए चेक करते हैं. If the areas of three adjacent faces of a cuboid are x, y, z respectively, then volume of the cuboid. अभी यहाँ पे क्या दिया है, एरियाज गिवन है, 3 फेस का एरिया गिवन है. अभी चेक करना है कि वॉल्यूम जो है वो √(x,y,z) होता है कि नहीं होता है. तो लेट्स चेक. x एरिया है तो x इज इक्वल टू एल बी. ओके, लेट x इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ. y इज इक्वल टू ब्रेथ इंटू हाइट एंड z इज इक्वल टू हाइट इंटू एल, है ना. एरिया निकाला है यहाँ पे लिख लिया मैंने. अभी x y z क्या होगा, एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल, मतलब L² B² H². स्क्वायर अगर इधर हटा दिया तो इधर आ जाएगा √(x,y,z) इज इक्वल टू LBH. और ये है क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला, है ना. और यहाँ पे दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज √(x,y,z). तो ये तो सही है ना, स्टेटमेंट करेक्ट. तो यहाँ पे होगा P इज फॉल्स, Q इज ट्रू. ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Okay, आगे बढ़ते हैं with question number 40. यहाँ पे assertion दिया हुआ है if the nth term of an AP is 7 minus 4n then its common difference is 4. common difference 4 दिया हुआ है. अभी हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं है. तो nth term given है
an is equal to 7 minus 4n। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। 7 minus 4 into 1, this is equal to 7 minus 4 is 3। second term 7 minus 4 into 2, so this is equal to 7 minus 8, that will be minus 1। ठीक है, अभी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। d is equal to a2 minus a1, है ना। a2 का वैल्यू है -1 एंड -3, तो कॉमन डिफरेंस विल बी -4, बट हमें यहाँ पे दिया गया है कॉमन डिफरेंस इज 4, सो असर्शन इज फॉल्स, ये फॉल्स है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट रीजन में दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज गिवन बाय d इक्वल टू an प्लस 1 माइनस an। तो हमेशा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो सक्सीडिंग टर्म है उसमें से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करना है ना। सो दिस इज ट्रू, तो हमें सही आंसर मिला ये डी, ऑप्शन डी, दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे असर्शन गिवन है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस इज ट्रू। ओके, रीजन क्या दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, दिस इज आल्सो ट्रू, है ना। बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion, so option B will be the correct answer। okay, next question number 42, assertion है the ratio in which x-axis divides the segment joining the points -4,3 and 2, -6 is 1:2। ठीक है, और रीजन है the ratio in which the line segment joining point P x1 y1 and Q x2 y2 is divided by x-axis is -y1:y2। ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स अगर एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, इन दैट केस आपका जो रेशियो है वो हमेशा यही होगा, यानी y1:y2 और y1:-y2। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, याद रखना। ठीक है, अभी इस हिसाब से हम चेक करते हैं असर्शन जो गिवन है वो ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पे जो पॉइंट्स गिवन है वो है -4,3 एंड 2, -6, तो y1 हो गया आपका 3 एंड y2 हो गया आपका -6। ठीक है, अभी रेशियो निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करके निकालते हैं, -3:-6 है y2 का वैल्यू, दिस विल बी -3 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 1:2, है ना, और यहाँ पे 1:2 ही गिवन है, दैट मीन्स असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो इसमें आपका ऑप्शन आ जाएगा ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 43, assertion है the length of the minute hand of a clock is 7 centimeter। मिनट हैंड का जो लेंथ है दैट इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस जो है, रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ओके, देन द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट इज 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपको फाइंड आउट करना है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ओके, अभी एंगल अगर निकालना है तो 60 मिनट्स में आपका एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, राइट। इन अ क्लॉक मिनट हैंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट चाहिए, है ना। 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, तो इन दैट केस 5 मिनट्स में क्या होगा, 360 डिग्री बाय 60 इंटू 5, राइट, ये कट हो जाएगा, आएगा यहाँ पे 6 5 30, यानी कि आपका एंगल जो है दैट विल बी 30 डिग्री। अब एरिया निकालते हैं, एरिया का फॉर्मूला है आपका थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया आपका 30 डिग्री, 30/360 डिग्री, पाई और आर का वैल्यू है, अच्छा पाई का भी वैल्यू यहाँ
7 और r है 7 स्क्वायर, ठीक है। 0 0 कैंसल, 3 12 जा 36, 2 6 जा 2 11 टाइम्स आएगा और भी हो गया 11/6 इंटू 7, 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7, तो 7 7 कैंसल, सो आंसर इज 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। यानी कि असर्शन जो है दैट इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है रीजन में, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा एंड रेडियस आर इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज आपका यहाँ पे 2 मिसिंग है ना। एल इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर होना चाहिए था, सो दिस इज रॉन्ग। यानी कि आपका आंसर जो है दैट विल बी असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation where a is not equal to 0, a, b, c are real numbers, then match the column 1 and column 2। यहाँ पे column 1 and column 2 given है, you need to match करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है b square minus 4ac equal to 0, तो ये b square minus 4ac equal to 0 कब होता है, जब रियल एंड इक्वल रूट्स होता है, राइट। सो 1 आएगा s, 1 s के साथ जाएगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। नेक्स्ट चेक करते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 होने से क्या होगा, नो रियल रूट, तो नंबर 2 जो है वो p के साथ आएगा, 2p, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं बाकी ऑप्शंस। 3 जो है ये है b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 कब होता है, जब ग्रेटर देन 0, ये होता है जब आपका रियल रूट एंड अनइक्वल रूट होता है, रियल एंड अनइक्वल रूट होता है, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब रियल रूट होगा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Okay students, let's move to the last question, question number 45. If AB is a chord of length 6 cm of a circle with center O of radius 5 cm, the tangents at A and B intersect at a point P, then match the column 1 with column 2। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, टेंजेंट्स आर ऑल्सो गिवन, टेंजेंट दिया ड्रॉ किया गया है, ए बी कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस इज ऑल्सो गिवन, अभी हमें मैच करना है, ठीक है। तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ ए इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके। तो ये इंफॉर्मेशन में से हम यहाँ पे देख चेक करते हैं क्या क्या है। तो ऑप्शन 4 देखो, ए बी है ना, ए बी का लेंथ गिवन है, ये हो जाएगा 4 क्यू के साथ जा रहा है, और ए क्यू जो है, ए क्यू इज हाफ ऑफ ए बी, पी ओ जो है वो ए बी को बाइसेक्ट करता है, सो ए क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए जो है 1 जो है वो जा रहा है आपका एस के साथ, ठीक है। ओ ए जो है वो तो 5 सेंटीमीटर गिवन ही है, तो चलिए चेक करते हैं आंसर। यहाँ पे 1 एस के साथ जा रहा है, फिर 3 पी के साथ, 4 क्यू के साथ, सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर।